Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today of class 6. Today we are going to discuss exercise based upon LCM, means least common multiples. We have to do exercise today. So, are you ready to do? So, already in the last video, we have discussed about what is the least common multiple. Again, we will discuss little more. So, what is the LCM? The least common multiple of two or more given number is the least number to be exactly divisible by each one of them. ठीक है, डेफिनेशन से अगर समझ नहीं आया है तो सिंपल जो लैंग्वेज में हमें समझना है, यहाँ पर देखिए कि three words are there. Okay, 3 words are there. First is least, मतलब सबसे छोटा. Common means जो दोनों में हो, जो दो नंबर का हो, और multiple का मतलब है multiples. As you know, dear student, when we are talking about multiples, then we are going to write the table of that particular number. We understand like this. Okay. जब 8 की multiple if we are talking about, we can obtain the LCM of 8 and 12 as follows. Okay. So multiples of 8, if 8 we are talking about LCM of 8 and 12, how we can find? We can first see the multiple of 8. It means we have to write simply the table of 8. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48. And we should write the table of 12. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, and further on we can write. But beta, we already find our first common multiple. Least means first common multiple. So we are not doing further. Okay. Further also we are finding that multiples we are finding, but this is so common multiples. Oh, sorry. Here also 124 is there. I'm really sorry about that one. So common multiples of 8 and 12 is 24 and 48. Two multiples are there. But they are talking about least common multiple. जो multiple सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले 24 आए या 48. 24 come first. So our least common multiple of this is 24. So the LCM of 8 and 12 is 24. I hope you are getting this one. Now, two methods are there for LCM. One is by prime factorization method and second is by division method. Beta, prime factorization method, you already know that we have to divide that particular number in terms of prime number. Okay, and second number I will show you. So let's start the exercise 7th F. Our first question is find the LCM of each of the following by listing multiples. मतलब ये है कि पहला आप वो कह रहे हैं कि multiples लिखिए और उसके बाद HCF निकालिए. तो जहां तक हमें पता है कि multiples का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर नंबर की टेबल लिख दीजिए आप, और जो आपको फर्स्ट कॉमन नंबर दिखेगा वही उनका क्या आएगा, LCM आएगा. तो 12 की टेबल 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, 12 5 ja 60 and further on. Now multiple of 16, 16 1 ja 16, 16 2 ja 32, 16 3 ja 48. As you can see 48, 48 you can see the two common number. So least common multiple of 12 and 16 is 48. LCM of 12 and 16 is 48. Our second question is 15 and 25. As we can write the table of 15 and 25. 15 1 ja 15, 15 2 ja 30, 15 3 ja 45, 15 4 ja 60, 15 5 ja 75. 25 1 ja 25, 2 ja 50, 3 ja 75, 4 ja 100. As you know that we already get our first multiple, least common multiple, that is 75. So LCM of 15 and 25 is 75. I hope you are getting. Now multiple 8 and 9, so we will write the multiple of 8 and multiple of 9, means table of 8 and 9. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 6 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48, 8 7 ja 56, 8 8 ja 64, 8 9 ja 72, 8 10 ja 80.
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। आप ये देख सकते हैं कि पहला जो हमें कॉमन नंबर मिला है, और वो भी सबसे पहला जो नंबर हमें कॉमन मिला है वो मिला है 72। इसका मतलब है इनका जो एलसीएम है, कॉमन मल्टीपल या फिर आप एलसीएम कहें 8 और 9 का, वो क्या होगा बेटा 72 होगा। ठीक है, अब 2 4 6 के हम लोग टेबल लिख देंगे, मल्टीपल का मतलब है हम लोग टेबल लिख देंगे। यू कैन सी बेटा 2 इन सब में आपको जो सबसे पहले, अब देखो 8 यहाँ है लेकिन 8 6 में नहीं है, इस तीसरे वाले नंबर में नहीं है, और हमें तीनों नंबर का निकालना है। तो जो हमें फर्स्ट कॉमन नंबर मिला है वो मिला है 12। सो 2 4 6 का एलसीएम होगा 12। Last part of question number 1 is find the LCM of 5, 8, 10 by listing multiples। तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे, मतलब 5 की टेबल लिख देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 8 की टेबल, और मल्टीपल ऑफ 10। एज यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट जो कॉमन नंबर तीनों में दिख रहा है वो है 40 40 40। So LCM of 5, 8 and 10 is 40. I hope you are clear with this method. Now our second method is find the LCM of each of the following by prime factorization method. So method is there, finding LCM by prime factorization method. 2 steps are there. पहले स्टेप है express each number as the product of prime factor। हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमें गिवन है उसको हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर अपीयरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज द एलसीएम, और इसमें हमें बड़ा सा बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, आई विल शो यू बाय सॉल्विंग द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 14 and 24। तो 14 को अगर मैं प्राइम में तोड़ूं तो सबसे पहला मेरी ड्यूटी है कि मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर जैसे 2 7 जा 14, 7 किसी की टेबल में नहीं आता है तो 7 1 जा 7। 14 को जो मैंने प्राइम में तोड़ा है वो 2 into 7 तोड़ दिया है। ठीक है, 24 को देखूं 2 से करूंगी, 2 1 2 12 जा 24, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, 24 को जो मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ा है 2 into 2 into 2 into 3। अब आप ये देखिए करना क्या है, एलसीएम हम लोग 14 और 24 का कैसे लेंगे बेटा, अगर कोई भी चीज एक कॉमन दिख रहा है हमें दोनों में तो वो नंबर एक ही बार देंगे। अगर हमें ऊपर भी नीचे भी कुछ चीज कॉमन लिख रहा है, जैसे कि हमें 2 कॉमन लग रहा है तो उस 2 को हम एक ही बार लेंगे, और बाकी हमें सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। 2 into 7 into 2 into 2 into 3। So LCM of 14 and 24 is 168. Now moving to second part of question number 2, we have to find the LCM of 12, 20 and 36. प्राइम 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, 20 को भी एंड 36 को भी। फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें छोटा सा छोटा प्राइम नंबर लेना है। छोटा सा छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से सबसे पहले हमें 2 ही लेना होगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, हमने ऐसे में से लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया है। अब देखो बेटा, सबसे पहला आपका टास्क क्या होगा कि आपको तीनों में अगर कोई कॉमन दिख रहा है 2 2 2 तीनों में, तो आप एक बार उस 2 को लिखेंगे। यहाँ पर मुझे 2 2 2 कॉमन लिखा है तो मैंने सिर्फ एक बार लिया है, इसे इतने बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। 3 3 मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं एक ही बार 3 लूंगी। ठीक है, उसके बाद जो छूटे हुए नंबर हैं वो भी मुझे लिख लेने हैं, जैसे ये 3 और ये 5। सो 2 into 2 into 3 into 3 into 5। समझ आ रही बात? कहीं चाहे 2 में है चाहे वो नंबर 3 में है, कॉमन है तो सिर्फ एक बार ही आएगा। सो एलसीएम ऑफ 12, 20 and 36 is 180. Now third part of question number 2 is that we have to find the LCM of 42, 63 and 140. As you know, our first step is, as you know, that we are doing from prime factorization. So first step is we have to divide these number as a product of prime factors that we are doing। 42 का
2 21, 21 2 जा 42, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 21 3 जा 63, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 70 2 जा 140, 35 2 जा 70, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7. As we convert this into prime factors, again we can see the same thing. 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन, एक बार 2 लिखा. 3 इन दोनों में कॉमन है, एक बार 3 लिखा. 7 इन सब में कॉमन है, एक बार 7 लिखा. उसके बाद जो नंबर छूट गए हैं वो सारे नंबर लिखने हैं आपको. 3 छूटा है, 2 छूटा है, 5, और इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना है. मेरा आंसर आ रहा है 1260. सो एलसीएम ऑफ 42, 63 एंड 140 इज 1260. Now moving on to the next question of question number 2, that is find the LCM of 8, 40, 56 and 60. What we are doing, we are converting this as a prime factor. Prime factors में हम इनको तोड़ रहे हैं. 8 का 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. 22 जा 40, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10 and 5 1 जा 5. 28 2 जा 56, 14 2 जा 28, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7. 2 30 जा 36, 2 30 जा 60, sorry, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. So I hope you all know how to solve these questions by prime factorization, how to convert this. Now these all I am writing like this: 8 2 into 2 into 2 and 40, all these multiply. I am doing this all factors like this, and all these I am like this. Now I will see what are the common things. This 2 whole 2 time is common, so 1 2 3, 1 2 these 2. Okay, now 5 is there, so I will write, and 7 and 3. एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया. 2 into 2 into 2, 5 भी कॉमन है, into 5, और जो बच गए हैं 7 और 3 उसको भी लिख दिया है. बाकी सबको मल्टीप्लाई करके 840. सो एलसीएम ऑफ 8, 40, 56 and 60 is 840. Now moving on the next question and the last part of the question number 2 as prime factorization निकालने हैं इन सब के. आपको आता ही होगा कि 2 की टेबल में 18 कब आता है, 9 जा. अब 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9, 3 की टेबल में 1 जा. मैं ये सारे आप कहीं ये बोल रहे हैं कैसे करके लिखा है. ये 18 को लिखा है 2 into 3 into 3. ये जो ये वाले पार्ट है ना, मल्टीप्लाई करके बेटा लिख दिया है. ठीक है, 2 की टेबल में 18 टाइम आता है 36, 2 की टेबल में 9 टाइम आता है 18, 3 की टाइम पे 3 टाइम आता है 9, 3 की टेबल में 3 1 जा 3. इट्स लाइक दिस वी राइट. ओके, नाउ वी कैन सी दिस वन. वी कैन अगेन सी व्हाट आर द कॉमन थिंग्स. 2 2 2, एक 2 तो सब में कॉमन आ रहा है. 3 3 3, एक 3 ये कॉमन आ रहा है. 3 3 3, एक 3 ये लिख देंगे. अब क्या है बेटा, अब छूटे हुए लिखेंगे. 5 देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 लिख दिया. अब छूटा हुआ क्या है, एक 5 छूटा है, एक 2 छूटा है. सबको मल्टीप्लाई कर दो और इसका एलसीएम आ रहा है 900. आई होप यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं और फिर कॉमन लेना है. कॉमन भी नहीं लेना है आपको, कॉमन वाले सिर्फ एक बार लिखने हैं और जो छूटे हैं वो सारे नंबर्स लिखने हैं. I hope you are getting. So try to solve these type of question. Up to that time, be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.